to Nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, especially Maharashtra and Mumbai. In every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. There has to be a congruence, political pundits say, between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome the esteemed guest in our studios today. We have Ali Daruwala Sahab from the Bharatiya Janata Party. Daruwala Sahab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, sir. And we got Syed Laraib Akram Sahab from the RJD. Akram Sahab, Syed Sahab, Namaskar. Welcome to the show. Thank you so much. Ali Daruwala Sahab, we start from you before we go to the national international scene. Devendra Fadnavis ji has got a fantastic budget today. Maharashtra budget is super budget as the BJP calls it. Fadnavis ji has gone through all sections of the society. Farmers, industrialists, industries, roads, transport. Nothing is left. He says 2047, $5 trillion economy. Daruwala Sahab on Fadnavis budget. Daruwala Sahab. Good evening to you. Good evening to your viewers over here. Since we are talking on the budget, I'd like to present to you the budget which last year was presented in front of the government. This year's budget we have increased by 30 to 40%. Total, if you see the aggregate 21% that has gone up. Our budget for this year, the Bhandwali Kharch, which Devendra Fadnavis said, that is the capital expense. From 90,000 crores, it has gone to 1 lakh crores. Ani, that is, it's in Marathi, I'm just converting it for you. For the Honorable CM speech. Yes. It is a total 10% increase compared to last year. From 90,000 lakh crores, the budget has been increased to 1 lakh crores from Maharashtra. And the total increase, if you see, the country has risen by 7.3%, but Maharashtra has risen by 7.9%. This is the total GDP. The gross index for the full country, Maharashtra has surpassed that, and we have reached to 7.9%. As we go ahead in our interview, I'll explain the nitty-gritties, where and what sectors we have increased our spendings, and what schemes have been continued, and what new schemes have been added. Over here, we are not reducing any more existing schemes, but to add to it, to the glory of Maharashtra, we are going to increase more Kalyankari schemes for the citizens of Maharashtra. That was my opening statement over here. And the budget in Maharashtra, as the opposition is saying, is for the industrialists and for the contractors and only for the development work. No, this budget is not only for certain houses which they claim, as they always claim, lies on the people, because they do not have any proper agenda what they can represent as to what they have done in last 1.5 years, ever since our government has come to power. Honorable Chief Minister has credited both the Deputy CMs and the Minister of States of the Finance Department, and our total Ministry of Finance has worked together to make this budget a super success. As we go into our debate, I will explaining to you what good it has got for the country, and along with it, what good has come in for the state. Pradeep, sir. Ladki Bahin is continued. That's the most important thing for people of Maharashtra and the women of Maharashtra. Daruwala Sahab, you have not discontinued Ladki Bahin scheme. जैसे बिहार में भी ऐसे एक स्कीम निकाल जो महिला सशक्तिकरण के लिए रखा था, आपने भी वो स्कीम को डिसकंटिन्यू नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया. दारुवाला साहब. As I said in my opening statements, forget about discontinuing schemes over here. We are in the process of adding more schemes, more welfare schemes, and what has happened, which we need to understand, the deficit is 3.5%, or else it would have been 10%. Because of the heavy rainfall, the अतिवृष्टि, जो ज्यादा बारिश होने की वजह से जो शेतकरी का नुकसान हुआ है, अगर ये बारिश ये साल इतनी भयंकर अगर नहीं होती, तो I can assure you, Pradeep sir, our Maharashtra fiscal budget would have been 8%. We go to Syed Laraib Akram Sahab from the RJD. Syed Sahab, baat here, before we come to the national politics or international politics we discuss,
नीतीश कुमार जी एक बड़ा नेशनल न्यूज ही है। नीतीश कुमार जी 10 टाइम सीएम, ही इज गोइंग टू राज्यसभा। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि दिस इज अ बिट्रेयल ऑफ बिहार वोटर्स। किस प्रकार से सैयद अकरम साहब, किस प्रकार से आप देखते हो इस चीज को, नीतीश कुमार जी का? नमस्कार, धन्यवाद आपका। यस नमस्कार। कुमार इज टोटली, आप कह सकते हैं, इज फेथलेस मैन। और जिस तरह से उन्होंने एक हैबिचुअल बिट्रेल के तौर पे सामने आए हैं, जिस तरह से धोखा देने का काम किया है, सोशलिस्ट लाइन की पॉलिटिक्स में एक अंतिम अर्थी के तौर पे याद तो किया जाएगा उनको। बड़े दगाबाज निकले, बड़े धोखेबाज निकले। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार की एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कल्चर में कभी भी सांप्रदायिक पोलराइजेशन नहीं कर सकते। कम्युनल पोलराइजेशन बिहार में पॉसिबल नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी के कंधे चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी बिहार को हथियाना चाह रही थी, और ये आज होता हुआ हमारे आपके सामने दिख रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने शुरू से आखिर तक, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार इनके अपॉर्चुनिस्ट अलायंसेस आपने देखे होंगे। ये सर्वाइवल की पॉलिटिक्स करते हैं, इन्होंने कभी भी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं किया। अगर ये हमारे स्टेटमेंट के बाद आप ये सवाल पूछेंगे कि आप भी तो नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं और गए हैं, मैं इसका जवाब पहले दे देता हूं। जब भी हम गए तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए गए और इन शर्तों के साथ गए, इस अपने सिद्धांतों के साथ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकल कर हमारे पास आइए तो हम आपका स्वागत करेंगे। क्या मजबूरी आन पड़ी? एक एप्स्टीन फाइल पूरे दुनिया में नाक पीट रहा है, आप देख रहे हैं। यहां का नॉन बायोलॉजिकल लीडर जो है वो एप्स्टीन फाइल में रेगुलर फजीहत हो रही है, लेकिन उस पर कान पे जू नहीं रेंग रहा है। कौन सी फाइल है जो नीतीश कुमार को जिसमें ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या बिहार का मानचित्र जो तैयार किया गया है, बिहार को बांटा जा रहा है, बिहार को से अलग प्रदेश बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है, उसमें नीतीश कुमार रोड़ा बन रहे थे? क्या नीतीश कुमार वो जमीनें और भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है जो पीरपैंती भागलपुर में अडानी को दी गई है कौड़ी के भाव? क्या होने जा रहा है? क्या 93,000 करोड़ जिसका सीएजी रिपोर्ट में है कि बिहार की ट्रेजरी से अभी तक मिलान नहीं हो पा रहा है उन राशियों के निकासी का, क्या इस पर जवाब है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पास में? कुछ भी नहीं है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, लूट चरम पर है। लेकिन अगर इनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए तो एक ही राग उनको पता है। 2005 से पहले कुछ होता था, 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था, 2005 से पहले कोई कुछ खाता था। तो भाई 21 साल की सलामी आपको मुबारक हो। यही नीतीश कुमार जिसको आज महिमा मंडन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, नाक रगड़ते रह गए। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए, बिहार को विशेष राज्य की मांग करते हुए आप डिटोरिएट हो गए। आपकी मानसिक अवस्था संतुलन आपने खो दिया। आप इलाजरत है। हेड ऑफ द स्टेट का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। और अगर आप अस्वस्थ हैं तो क्या राज्यसभा को आपने डंपिंग यार्ड समझा हुआ है? और यदि आप हेल्दी हैं तो फिर बिहार छोड़ने की क्या आवश्यकता हो गई? आप मैंडेट के साथ पीठ में खंजर क्यों घोंप रहे हैं? तो ये नीतीश कुमार तौर पे देखता हूं और कह रहा हूं कि मैं अपने विश्वविद्यालय के दिनों से मैं छात्र राजनीति में मैंने अपनी शुरुआत की दिल्ली विश्वविद्यालय में था मैं जब, और मैंने अडवाणी जी के आप प्रसंग देखा अपने आंख के सामने। दूसरे अडवाणी को बनते देखूंगा ये उम्मीद नहीं थी। तो ये बहुत कायदे से अडवाणी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, हाथ मिलाकर गला काटने का। तो उसने उड़ीसा में क्या किया, एक नाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, दूसरी जगहों पर क्या हुआ, और अपने पार्टी के नेताओं के साथ आपने देखा केंद्र में भेज करके उनको निपटाने का जो काम किया मध्य प्रदेश से। और इसी बिहार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे भारतीय जनता पार्टी को सींचा जिन्होंने यहां तक लेकर आए, गुजर गए दिवंगत सुशील मोदी जी के साथ क्या किया। तो
ये तो परिस्थिति है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है मुख्यमंत्री जी का, तो वैसे आपको कहना चाहिए, कान घुमाकर पकड़ने की क्या आवश्यकता आ गई। बट सैयद नारायण साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने जो भी वादे किए थे बिहार में भी चुनाव से पहले, जो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला को जिस प्रकार से फंडिंग किया था, आज जो अली दारूवाला साहब बीजेपी महाराष्ट्र से है, उन्होंने कहा कि इस बजट में वो लाड़की बहन स्कीम कायम रखा है। वो सिर्फ चुनावी जुमला नहीं था, वो क्लियर कट बीजेपी का इंटेंशन है महिला सशक्तिकरण। Now how do you see that? लड़ाई अकरम साहब, सैयद अकरम साहब। जी नहीं, ये बोगस बात है। सुन लीजिए, मैं करेक्ट कर दूं। हाँ। उन्होंने जो बात कही वो कागजी बात कही है। उसके सारे इंस्टॉलमेंट रोक दिए गए। लड़की बहनी योजना यहाँ जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी वो भी बंद कर दी गई है। बिहार में इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? हवा हवाई की बात नहीं करें। बिहार में जो आपने देने का वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आपने रोक दिया वो स्कीम को और दूसरे राज्यों में भी आपने रोका है, और महाराष्ट्र का कंटिन्यूएशन नहीं है। आप जरा चेक कर लीजिए फैक्ट को जाकर के। ये फिर से वापस में उसको ग्लोरीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं अपने बजट पत्र में लाकर, उससे कुछ होना नहीं है। तो मैं आई वेलकम पूजा मिश्रा जी फ्रॉम द समाजवादी पार्टी। पूजा मिश्रा जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार पूजा मिश्रा जी, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इंटरनेशनल। उससे पहले जो योगी जी सिंगापुर जापान का दौरा करके जो एक जबरदस्त ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये आप किस प्रकार से देखते हो? डोंट यू थिंक यहाँ पर दो जो है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कंपटीशन की तरफ से चल रहा है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इनटू उत्तर प्रदेश। इस विजिट को किस प्रकार से देखते हो आप पूजा मिश्रा जी? प्रदीप जी, इस विजिट को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2027 में इलेक्शन है। 2017 से जो है सरकार है भाजपा की, 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उनका ये सेकंड दौरा था विदेश का। फर्स्ट दौरा वो गए हुए थे किसी समिट में ऐसे सम्मिलित होने के लिए, किसी ऐसे जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ऐसे किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। ये सेकंड दौरा उनका था जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, एमओयू साइन करेंगे इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2027 में उनके पास में मुद्दे नहीं है बताने के लिए कि हम कौन से मुद्दे जो है लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। वरना इतने समय से इनको इन्वेस्टमेंट का ध्यान नहीं आ रहा था, कोई एक साल तो है नहीं, ये पूरे 9 साल हो गए इनकी सरकार को, 10 साल होने आ रहे हैं और पंचवर्षीय खत्म होते होते इनको अचानक से याद आता है कि नहीं अब तो जाना चाहिए बाहर, जो है हमें इन्वेस्टमेंट लेकर के आना चाहिए। हमारी सरकार के टाइम पे, समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम पे एमओयू साइन हो रखा था। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, जो आगरा एक्सप्रेसवे देखा होगा, वो यूएई के 2015 के समिट में समाजवादी पार्टी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में और मल्टी कंपनीज के साथ में एमओयू साइन किया हुआ था। जो इत्र नगरी बननी थी वो भी समाजवादी पार्टी ने रशिया से जो है एमओयू साइन किया हुआ था। और जो आपने देखा होगा कि गोमती रिवर फ्रंट बना है उसमें भी जो समाजवादी पार्टी सरकार ने एमओयू साइन कर रखा हुआ था और काफी सारे एमओयू समाजवादी पार्टी सरकार ने साइन कर रखे हुए थे जो ग्राउंड पर आ रहे थे और जो ग्राउंड पे कार्य चल रहे थे, जिनके सरकार आने के बाद में भाजपा ने उन एमओयूज पे भी काम नहीं किया, उन पे ढीला काम किया। और अब 2027 के मद्देनजर कि क्या दिखाएंगे हम जनता के बीच में, तब जाकर के वो जो है जाते हैं विदेश। हालांकि हम तब भी कह रहे थे अगर आप विदेश गए ही थे तो आपको जो है वहां पे जाकर के देखना चाहिए कि आपने कहा था कि वाराणसी को क्योटो बनाएंगे, तो जापान का क्योटो दिखता कैसा है और हमारा वाराणसी या बनारस कह लूं मैं वो कैसा दिख रहा होता है। अगर आप बात करो तो गंगा सफाई की, नमामि गंगे की, तो वहां पे 10 साल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे जहाँ पे नदियों को साफ किया जाता है। वहां पे जाकर के देख लेते कि वहां का प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होकर के कार्य करता है। दीवालों पे जो है जिस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि दीवालों पे नमामि गंगे के फंड से पेंटिंग कर दी गई, वहां पे इस्तेमाल किया गया। कभी जो है बनारस के डीएम को नोटिस भेज रही होती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, माँ गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं और अगर ये आपके कार्यभार में नहीं आता माँ गंगा की सफाई तो आप बोर्ड लगा दीजिए। कभी जो है आपने देखा है किस तरीके से फीकल कोल्डिफॉर्म को लेकर के उनके जो इंक्रीज हो रखे थे उसको लेकर के नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला है। इनको चाहिए रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाई जाए कि सफाई है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखा कि भाई गंदगी बताया। तो ये इनका बस एक स्टंट है। उत्तर प्रदेश की प्रगति की इनकी इच्छा ना थी ना है और ना ही इनकी दिखती है कि ये विजन रख रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रगति को। उत्तर किसी की प्रगति कब हो सकती है? इकोनॉमिक्स एक बार कहा था कि ये बहुत जरूरी है
प्रगति होने के लिए कि आप अगर जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो जॉब आप ऐसे क्रिएट करिए कि पहले गड्ढा खुदवाइए, फिर उस गड्ढे को तुपवाइए, पर आप जॉब क्रिएट करिए, तभी किसी प्रदेश की या किसी देश की तरक्की हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, आप बता दीजिए कितनी भर्तियां कराई गई है। आप बता दीजिए, हम लोग कई बार, मैं भी गई थी कंपटीशन के बच्चों के साथ में, हमारी चल रही थी वहां पे, हम लोग करते रहते हैं भाई, शासन से आते हैं तो कंपटीशन के बच्चों के साथ में मीटिंग चलती है हमारी। वहां पे जो कंपटीशन की किताबें बेचते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो भी रहते हैं। तो वो कह रहे कि बच्चे जब जो है अभी आने वाले फ्यूचर में कभी वो एग्जाम्स देखेंगे ना, तो उनको कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा 2018 के बाद के क्वेश्चन पेपर उनको मिल ही नहीं रहे हैं। उनका ध्यान नहीं जाएगा कि जब 2017 का है, 2016 का है, 2015 का है, वो ये बाद में उनको समझ में आएगी 2018 के बाद से एग्जाम ही नहीं हुए, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं जो क्वेश्चन सीरीज चलती है। तो ये सरकार ने ना तो नौजवानों को नौकरी दी है, किसानों की ना तो आय ठीक की हुई है। आय ठीक कहने का मतलब है कि किसानों की लागत दोगुनी हो गई है, और जो आप कहते हैं एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी तो लागू है भी नहीं, जो क्रय विक्रय करना होता है उनको, वो कम आधी हो गई हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए किसानों की आय आधी हो रखी हुई है, ये सच्चाई। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए थे और अब आकर के कहेंगे नहीं हमने एमओयू साइन किया हुआ है, हमने एमओयू साइन किया हुआ है। आप देखिए तो कैग की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट, इनके खुद के मंत्री विधायक, ये सब इनके अगेंस्ट में जो है बोल रहे हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद जब देखिए तब जो है ऑटो सुमो लेकर के सरकार को तलब किए रहता है, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, कभी कानून व्यवस्था को लेकर के, कभी पुलिस के रवैये को लेकर के, कभी सरकार के रवैये को लेकर के। तो इन सब चीजों से छुपाने के लिए कभी धर्म पे भी नहीं खड़े उतरे। इन्होंने जिस तरीके से गंदा कृत्य किया हुआ उत्तर प्रदेश में, तो ये बस एक कह सकते हैं कि एक पर्दा करने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, कुछ तो चिल्लाने के लिए चाहिए होगा ना, तो वो कुछ जो है करने के लिए वो वहां पर गए थे। इसका कोई धरातल पे दिखता हो सच्चाई नहीं नजर आती है। अली दारूवाला साहब आज महाराष्ट्र में बजट थे, तो अली दारूवाला साहब, फडणवीस साहब ने जो सिमिलैरिटी योगी गवर्नमेंट, फडणवीस गवर्नमेंट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नहीं ये एक एक पॉलिसीज, और जहां महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को इसमें गोल्ड मेडल मिला है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। तो डोंट यू थिंक जो पॉलिसीज सामने उभर कर आ रहा है, इट्स ऑल डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड दे आर बीइंग अवॉर्डेड 1 डिस्ट्रिक्ट। और यही योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पहले तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो भी माफिया होते थे, और तो हाउ इज अ चेंज फ्रॉम माफिया टू डेवलपमेंट? पूजा मिश्रा जी, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि इनके जो विधायक हैं, जो इनके सांसद हैं, इनके ऊपर में जो है इनके खुद के नेता, इनके खुद के कार्यकर्ता भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। एक तो यहीं पे विनीत सिंह मिर्जापुर से एमएलसी हैं, उनके ऊपर में एक नहीं ना जाने कितने एफआईआर दर्ज हैं जो पंचायत की जमीन कब्जा कर रहे हैं। बृजभूषण प्रताप सिंह और रघुराज प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, वर्तमान विधायक राजा भैया, और कुलदीप सिंह सेक्रेटरी जेल जगह, अजय मिश्रा टेनी, और ऐसी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। खुद इस सरकार ने पिछली साल जो है मई में 30 जो है कुख्यात लोगों का, ऐसे जो गुंडे की बात कर रहे हैं ना, उनके जो है गुंडों का नाम जारी किया हुआ था, जिनमें से जो है लगभग 10 तो गोरखपुर से ही आ रहे थे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता इस मामले में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब पीट के कह रहे थे, डंका जो है बज रहा है कि सारे जो है माफियाओं का खात्मा हो रखा हुआ है। भाई कौन से माफियाओं का खात्मा हो रखा है? आप ये तो या तो ये मान लीजिए कि पुलिस कस्टडी में जो है गोली मार के मरवाने वाले जो है वो आप हैं, क्योंकि क्या तो कोई माफिया ही मरवाया होगा भाई, सरकार अगर नहीं मारी, पुलिस नहीं मारी। जेल में मरवाने वाला जो है या तो आप मान लीजिए कि आप है, अगर आप नहीं तो फिर कोई माफिया ही किया होगा। और वो कौन सी लिस्ट है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार जारी करती रहती है? और तो और प्रदीप जी, इतना गुंडा मुक्त हो रखा है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि प्रतिदिन 3 मुठभेड़ होता है उत्तर प्रदेश में। 3 मुठभेड़ मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि रोज जब हम आप डिबेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि एक अपराधी पुलिस के ऊपर में कट्टा तान करके खड़ा होगा और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उससे मुठभेड़ कर रही होगी। ये तो जो है गुंडाराज इस तरीके से खत्म हो रखा है। अभी जो है कल ही दिन दहाड़े एक बच्चे को उठा लिया गया, अभी आज फिर उठा लिया गया। न्यूज आप देखेंगे आपको भयावह लगेगा। वो इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में देखने, आपने मेरठ का न्यूज जो काफी हाईलाइट हो जाता है, वो जानकारी मिलती है पूरे देशवासियों को कि मेरठ में बेटी को उठा ले गए, माँ की हत्या कर दी। पर इस तरीके की आम हो रखे हैं उत्तर प्रदेश में,
और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदीप जी, अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रही तो कोर्ट जो है खुद ब खुद आपको तलब नहीं कर रहा होता। आप देखिए कानून व्यवस्था को लेकर के कोर्ट के कितने जो है ऑटो सुमोज होकर के, कभी वो पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करे, संभल में बड़ा नौटंकी कर रखा हुआ था ना, हो गई ना 12 पुलिस कर्मियों के ऊपर में एफआईआर सीओ से लेते हुए कोर्ट ने आदेश करके करवाया। और यही जो है कौशाम्बी जिले में भी यही देखने को मिला कि कोर्ट ने आदेश करके 11 पुलिस कर्मियों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ एक ही काम करती है कि किससे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होंगे। प्रदीप जी कल्पित है कि नहीं है, डॉक्टर पूजा मिश्रा कल्पित है कि नहीं है, ये मैटर नहीं कर रहा होता। मैटर ये कर रहा होता कि किसको कल्पित बनाने से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होंगे, और इसी ढर्रे पे पुलिस काम कर रही है उत्तर प्रदेश की। आप चले जाइए एक सही काम के लिए, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं सारे 100% को नहीं कह रही हूँ, पर उत्तर प्रदेश का पुलिस का भी यही रवैया हो रखा है कि बिना जो है लक्ष्मी के काम नहीं करते। उनको पहले लक्ष्मी वर्षा चाहिए होती, फिर उसके बाद में तो बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे प्रसन्न होते। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो भी बोलेंगे गुंडा राज खत्म हो रखा है, अगर बिजनेस समिट होगा तो भी बोलेंगे गुंडा राज खत्म हो रखा है, अगर जो है त्योहार की मीटिंग होगी तो भी बोलेंगे गुंडा राज खत्म हो रखा है। जब आदमी चीख चीख करके एक ही चीज हर जगह पे कहने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं ये है कि वो चीज नहीं खत्म हुआ है, उसको पता है कि ये बड़ा वीक पॉइंट हो रखा हुआ है, तो इसलिए जहां जाओ यही बोलो कि नहीं ये चीज खत्म हो रखा है, उसका ये इनसिक्योरिटी है। भले दूर से किसी को कुछ भी दिखा दीजिए, पर ये इनसिक्योरिटी है उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब एकदम वेंटिलेटर पे आ रखी हुई है। दारूवाला साहब, you know, both of them don't agree with you. Both of them, Syed Saab, he also doesn't agree. Pooja Mishra ji from the SP also doesn't agree. जो फडणवीस जी, योगी जी के इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, महिला सशक्तिकरण, जैसे सैयद साहब ने कहा महिला सशक्तिकरण इज अ फार्स, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज जस्ट रोजी पिक्चर्स पेंटेड आउट, विंडो ड्रेसिंग। दारूवाला साहब, प्रदीप सर, ओवर हियर इन रिबटल जवाब के अंदर आई प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी। जो पूजा मिश्रा मैम और हमारे मित्र यहाँ पे जो बैठे हैं, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, इनको ये तरक्की हजम नहीं हो रही है। इनका ये रटा हुआ कैसेट जो होता है, 1 घंटे के शो में आधा घंटा ये लोग सिर्फ सेम कैसेट फॉर लास्ट 3 इयर्स में सुनते आ रहा हूँ, मगर यहाँ पे लोग तो कुछ बीजेपी को वोट देने से बाज नहीं आ रहे। और यहाँ पे जब वोट्स अगर आप कंसेप्चुलाइज देखे तो भारतीय जनता पार्टी बार 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 या सत्ते में आ रही है। क्यों सत्ते में आ रही? क्योंकि इनके लोगों की जो विफल हो गए ये लोग, इनकी नाकामयाबी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है तो उत्तर प्रदेश इटसेल्फ 1 मिलियन ट्रिलियन ऑलरेडी उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो कोई मैजिकल फिगर्स है नहीं। नीति आयोग ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है क्या 1 ट्रिलियन नहीं, उत्तर प्रदेश 1.5 ट्रिलियन देने की क्षमता रखता है। मगर यहाँ की अगर विपक्ष जो है ये सरकार को विदाउट रीजन घेरने का काम अगर नहीं करे, और ये बात को अगर मान ले कि जो गांव में सिर्फ 1000 लोग की लोक संख्या है उत्तर प्रदेश में, वहां पे सीमेंट रोड देने का काम योगी जी ने किया। गुंडा राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी इनके जो मित्र घूमते थे ना, मैं यहाँ पे स्पष्ट कहता हूँ, जितने भी इनके मित्र घूमते थे सबको उठा के यहाँ पर कायदे के दायरे में योगी सरकार ने इनको अंदर डाल दिया। ये बात इनको हजम नहीं होती, तो इनका जो बौखलापन जो दिखता है ना, इट इज वेरी एविडेंट। ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात करते हैं। पूजा मिश्रा मैम को मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, पहले 20 मिनट्स ओपनिंग उनका इसी में जाता है। उनको वो बने हुए एयरपोर्ट्स नहीं दिखते, उनको बने हुए रास्ते नहीं दिखते, उनको जो उत्तर प्रदेश जो तरक्की की राह पर है, उत्तर प्रदेश ने 60 करोड़ लोगों को होस्ट किया, द बिगेस्ट कॉन्ग्रेगेशन, हद से ज्यादा लोग आज कुंभ मेला में आके गए। वही कुंभ मेला ऑर्गेनाइजेशन आज नासिक में होने जा रहा है, वही टीम की सक्सेस को लेके आज महाराष्ट्र में रेप्लिकेट किया जा रहा है, वो इनको नजर नहीं आएगा। इनके जो काला चश्मा इन्हें निकाल के जो भारत की तरक्की है, जो योगी जी की यहाँ पे उपलब्धियां है, उसको उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करिए। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है इट इज राइजिंग एंड इट इज राइजिंग एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग। उत्तर प्रदेश अगर महाराष्ट्र के साथ बराबरी 5 मैं बीच में बात नहीं किया पूजा मैम, पहले 5 स्टेट में अगर नहीं आएगा बाय द ईयर ऑफ बिफोर द इलेक्शन, मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्शन के पहले उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है
उसको हम लोग नोट करेंगे, और ये नोट के टाइम में मैं आपसे विनती करता हूँ पूजा मिश्रा मैम को वापस से बुलाइए। इतने जो एयरपोर्ट्स बने, जो यातायात यूपी में बनी है, जो आज रात में मैं यूपी लखनऊ बार बार जाते रहता हूँ, वहां पे जो महिलाएं रास्ते में घूम रही है, जो पब्स वहां पे चालू है, सिनेमा हॉल्स वहां पे चालू है, मल्टीप्लेक्स वहां पे चालू है, शॉपिंग है, सारे बड़े ब्रांड्स आज उत्तर प्रदेश में आ गए साहब, इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी जो फॉरेन समिट, मुझे तो इसके पहले मैं तो कोई नेता को गलत कहना नहीं मानता, मैं तो ऐसा किसी को ट्रोल नहीं करूं, मुझे तो कोई यूपी का नेता अब्रॉड जाते हुए नहीं दिखा। यहाँ पे जापान हो, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन समिट, योगी आदित्यनाथ जी को इनवाइट कर रहे हैं, बोले हमसे हाथ जोड़िए, हम आपके साथ में इन्वेस्ट करना चाहते, हम आपके पास निवेश करना चाहते। मगर ऐसा नकारात्मक माहौल अगर ये लोग उत्तर प्रदेश में रखेंगे, और ये लोग यूपी की जैसा, यूपी को इतना अगर वो लोग नफरत की नजर से देखेंगे, तो समझ में आएगा ये लोग ने सिर्फ यूपी को एक दूध देने वाली गाय की तरह बांध के रखा था। जैसा मुसलमान, अगर इंडिपेंडेंस के पहले अगर आप देखें तो 53% लिटरेसी रेट थी, यही मुसलमान उत्तर प्रदेश की 53% से 27%, 40-60 साल इनके हाथ में सत्ता थी, इन्होंने मुसलमान को इतना बैकवर्ड बनाया। 27%, जस्ट इमेजिन, यहाँ पे दुनिया की रफ्तार बढ़ रही है मगर यूपी की रफ्तार माइनस गियर में चली है। तो ये हकीकत है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान चुका है क्या ये समाजवादी और कांग्रेस ने उनको सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया। अब वो उभर के और मुखर होके सामने आ रहे और बीजेपी को अपनी पसंदी दिखा रहे हैं, और ये आने वाले डर, बौखलाहट और भय में ये लोग बात करते हैं। मगर एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, यूपी की जो सक्सेस है, ये तुम्हारे मेरे कितने भी डिबेट करिए, कितना भी आप गला सुखाइए, आप कितने भी 5-5 शो पे जाइए, मगर आपको हार मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अपना जो सक्सेस है उसको दर्ज कर रहा है। समृद्धि हाईवे हमने यूपी से कनेक्ट कर दिया, आज नागपुर से लेके सोलापुर से लेके कर्नाटक बॉर्डर से आदमी बाय रोड विद इन 4 to 5 आवर्स यूपी पहुंच सकता है। आज यूपी के अंदर, सर मैं आपको बोलता हूं, अगर झूठ बात है तो आप मुझे रोकिए, अब भी मुझे डिस्कनेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश में कोई भी गांव के अंदर 5 के बाद में कोई भी टूरिस्ट गाड़ी चलने से इनकार किया करती थी, वो बोलते थे यार डकैती होती है। 1000-2000 जो गांव थे वहां पे पुलिस दरोगा तो दिखता ही नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ इनके गुंडे घूमते थे। अगर ये इतने साफ है, अगर ये इतने लोकप्रिय है, तो इन्होंने कार सेवक की जो इन्होंने हत्या की उसके बारे में आज तक माफी क्यों नहीं मांगी? जो हमने राम लल्ला को इंसाफ और न्याय देने का काम किया, इन्होंने उसकी तारीफ तो छोड़ी है, उसकी शिलान्यास में भी ये लोग नहीं आए। तो ये किस्म के लोग हैं, ये इन्होंने मुसलमानों को यूज किया, हिंदुओं के साथ में खिलवाड़ किया। और जो मकलेन पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की, जो डर्टी पॉलिसी, एजुकेशन पे मैडम ने बात की है, आई कम फ्रॉम अ सेनेट मेंबर ऑफ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, सर इतना गलत इतिहास इनके राज्य में, इनके दौर में सिखाया गया। इन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ के राजा महाराजा निकम्मे थे, कोई काम के नहीं थे, मुगल शासन इतना भारी था, उर्दू लैंग्वेज को रिकग्निशन देने का काम, उनको अनुदान देने का काम, मदरसों को पैसा देने का काम, मस्जिदों को खुलेआम रास्ते पे नमाज पढ़ने का काम, माइक लगाने का काम, आजान को ग्लोरीफाई करने का काम, ईदगाह को खर्चा करने का काम, ये सारा काम सर आपको मालूम नहीं तो मैं कहता हूं, यहाँ पे कितनी सारी दरगाहें है, मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, कितनी सारी दरगाहें मस्जिद है जिसको अनुदान यूपी गवर्नमेंट देता था साहब, और कितने सारे मंदिर है जो रास्ते में अगर आते थे तो ये लोग उसको तोड़ते थे। और जो बुलडोजर सरकार जो हमारी योगी जी, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, अगर वो 2-3 साल अगर वो बुलडोजर नहीं चलते तो ये सारे जो क्रिमिनल्स है ना, सारे क्रिमिनल्स, इनकी जो पैसे को जो योगी जी ने ताला मार दिया ना, उसके वजह से आप ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पे आके ये लोग झूठा डिबेट कर सकते हैं और योगी सरकार को नाम रखने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं। मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, आज हमारे पास इंडिया में आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, रात में फाइनल सेमीफाइनल देख रहे हो, और आधी दुनिया वॉर के डर से घर में छुप के बैठा है। ये बात के बारे में वो प्रशंसा नहीं करेंगे। आई एम श्योर पूजा मैम और हमारे मित्र ने सेमीफाइनल मैच देखा रहेगा। 90% ऑफ दी वर्ल्ड दुनिया में छुप के बैठी बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर, ये बिकॉज ऑफ योगी जी, मोदी जी, इन्होंने उनको धन्यवाद करना चाहिए। ये लोग उसको नाम रख रहे, shame on them. Ali Darwala sahab, let her talk. Syed sahab, I'll come back to you. Just Pooja ji wants to respond to Darwala sahab. बोला Pooja Mishra जी। ये जो है अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बहुत सही कही कि 3 साल से हम लोग एक ही चीज रट रहे हैं, बदला ही नहीं है।
मैं क्या करूं, 2022 में मैंने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ था, आज तक एग्जाम नहीं हो पाया। मैं You may have not मास्टर्स की, मेरी qualified for it. पीएचडी I'm sorry to कंप्लीट हो गई, मैं एलिजिबल हूँ पोस्ट डॉक के लिए, मैं जो है अलग अलग चीजों के लिए एलिजिबल, उसका एग्जाम ही नहीं कराया। 2018 से टेट का एग्जाम करा के सुपर टेट कराया ही नहीं, जो कि 2018 में हो जाना चाहिए था। पेट का एग्जाम नहीं कराया आपने, टीईटी का एग्जाम नहीं कराया, पीजीटी का एग्जाम नहीं कराया, तो क्या बोले हम कि आपने करा दिया? नहीं कराया आपने। 2022 से लेकर के 2018 से लेकर के आपने बढ़ा ही नहीं ना, तो हम कैसे बोले? वही चीज तो बोलना पड़ रहा है ना, कोई नया मुद्दा हम कैसे ढूंढेंगे? ये बात की जाए कि हाँ शंकराचार्य जी का अपमान किया आपने, छात्रों को लड़ा दिया। अभी जो बात चल रही थी कि लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम, 2011 का सेंसस कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जो है लिटरेसी रेट थी 2000 सेंसस के हिसाब से, वो जो है लगभग 58.76 थी, जिसमें जो है पुरुषों का 66.42% था, महिलाओं का 50.59% था, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है 2017 तक वो 62% रहा होगा। अगर क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं, 2011 के सेंसस से ही लिटरेसी रेट को हम काउंट करेंगे, और 2017 में 62% और 2020 तक अगर एक्सपेक्ट किया जाता है तो 65% जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुस्लिम की लिटरेसी रेट रहेगी। तो बिल्कुल झूठ अभी उन्होंने बोला परोसने का। मैं कहता हूं आप क्रॉस चेक कर लीजिए, नीति आयोग की बात की जा रही, नीति आयोग से कर लिया जाए, से कर लिया जाए। गरीबी रेखा से आपने बहुआयामी मापदंड ला करके लोगों को बाहर करने का जो कृत्य किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है उत्तर प्रदेश में आपने इतना 48% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब बहुआयामी मापदंड आप लेकर के आए हैं, उसके बाद भी आप अगर किए होते तो आप बोलते ना हमने पीजीटी का एग्जाम करा दिया, फिर फॉर्म निकाला, हमने पुलिस भर्ती करा दी, फिर फॉर्म निकाला। आप कहते ना लेखपाल की 69,000 की भर्ती आज तक लटकी पड़ी हुई है, आज भी युद्ध चल रहा है, आप किए ही नहीं। इसीलिए वो चीजें बार बार आपको प्रश्न कर रही हैं। और इन्होंने बोला कि कोई गया ही नहीं जापान। आप ही लोग मजाक उड़ाया करते थे कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जब देखो तब इस जगह जा रहे होते, उस जगह जा रहे, तो वो एमओयू लेकर के आए तो साइन किए हुए। अगर आपने प्रोग्रेस की होती, उस पर चर्चा की जा रही होती, हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाला समय 2027 है, आप जाइएगा जनता के बीच में, जनता आपको जवाब देगी। You know, I want to go to Syed Akram साहब। बात यह है कि दारूवाला साहब बिलोंग्स टू बीजेपी, ऑल्सो द आरएसएस मुस्लिम मंच, मुस्लिम फ्रंट जो है इंद्रेश कुमार जी के जो आरएसएस के नंबर 2 है, बहुत क्लोजली मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए सैयद साहब अली दारूवाला साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम यादव अपीसमेंट पॉलिटिक्स हैज फेल्ड वेयर बिहार इज कंसर्न, तो सैयद साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट अली दारूवाला साहब सेड, बोलिए सैयद अकरम साहब। ये जो बात बोल रहे थे, आप जिसका नाम ले रहे हैं कल्प्रिट देश का, जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का आरोपी, मालेगांव ब्लास्ट का, और उसके कंधे चढ़ करके एक मुसलमानों के बीच में प्रयोग करने के कुछ दलाल हैं, और वो अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान खड़ा होकर काल नेमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से खुलेआम देश को तोड़ने और समाज में नफरत फैलाने का, हेट्रेड फैलाने की पॉलिटिक्स कंधे पर चढ़कर ये कर रहे हैं, कम से कम मुसलमानों का नाम नहीं लीजिए। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत दलील हो तुम। मैं इनको इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, ऐसे तमाम लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने इस देश के ताने बाने को तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने कबीर के और नानक के देश को नकारा है। इसी महाराष्ट्र के अंदर में ये जो एक इनका राणे मिनिस्टर है, आज बोल रहा है कि आतंकवाद का अड्डा मदरसा है। शर्म नहीं आती है? उसी की पैरोकारी कर रहे हैं बैठ करके। आप मुदर्रिस को और मुहद्दिस को गाली बकवाते हो, मुसलमानों का खुलेआम लिंचिंग हो रहा है। इस देश को कहां लेकर जाएंगे आप? और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो आप मुसलमानों के पॉलिटिकल चेतना पे क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ नहीं है। आपको समझ आएगी नहीं, आपको पट्टी पड़ गई है। आपके अकल को के ऊपर अल्लाह पाक ने भी पट्टी डाल दी है। आप नहीं देख सकते हो, आपके कल्ब स्याह हो गए हैं, ईमान बेच चुके, आप गिरवी रख दिए। मुसलमानों की बात करते हैं। अब मुसलमानों को करने वाले लोग, घर से खींचकर मारने वाले लोग, और इनका नेता कहता है कि मुसलमान एक लड़की के बदले 10 लड़की मुसलमान लेकर आओ, मुसलमानों के बदले 4 बच्चे पैदा करो। 24 घंटे का नैरेटिव देश में बनाकर रखा हुआ है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
और ये ध्रुवीकरण की बात करेंगे। मुसलमान अपने मूल्य और हितों की रक्षा के लिए जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल ढांचे के साथ खड़ा होता है, वो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, वो डिक्टेशन नहीं होता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मुसलमानों के ऊपर बोलना तो कम से कम बंद करें। रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं, और इनका कौन सा डंका बज रहा है, एप्स्टीन फाइल में जलील का नाम आते आते ट्रंप लगातार आपको रिविलेट कर रहा है। सीज फायर कथित ऑपरेशन सिंदूर से पहले आधे घंटे पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी, आप चुप रहे, खामोश रहे। ट्रंप कल बोलता है कि आई कैन एग्जैक्ट क्या सेंटेंस था कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। आपके मुंह में दही जम जाती है। बेशर्मी की इंतहा तो यह है, और आप खामोश हैं। वहां कुछ नहीं बोला जाएगा। देश के अंदर जितना सांप्रदायिक जहर घोल सकते आप बोलिए। हज और कुंभ आपके नैरेटिव में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, जवाब दीजिए। कहां गया सैमसंग का प्रोजेक्ट आपके यहां उत्तर प्रदेश में आने वाला था, कहां गया महाराष्ट्र का? आप अपने यहां विदर्भा के किसानों की आत्महत्या तो रोक नहीं सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में हमने ये कर दिया और यहां ये कर दिया और वहां ये कर दिया। तोड़ने के अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, अभी शुरू हो जाएगा घुसपैठिया बांग्लादेशी, मुसलमानों का आईडी कार्ड चेक करना, मुसलमानों को दाढ़ी खींच करके मारना, मुसलमानों की दाढ़ी को तराश देना, और ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बट मत करिए सैयद साहब, आरएसएस का जो काम है, क्या आपने देखा नहीं? दारूवाला साहब बोलेंगे आपको, बोले दारूवाला साहब रिटॉर्ट करना चाहते हैं। दारूवाला साहब बोलिए, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू सैयद अकरम जी। गुड। इन्होंने तो मेरा टॉपिक ही छेड़ दिया प्रदीप सर। अभी जो ये इतने बड़े जो स्वघोषित मुसलमानों के नेता और मुसलमान समाज के ये जो अपने आप को नुमाइंदे कह रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों को 60 साल बैकवर्ड बना के रखा है। मुसलमानों को केवल और केवल सिर्फ टायर वाला, पंक्चर वाला और रसोई वाला बना के रखा है। आज मुसलमान बढ़ चढ़ के बाहर आ रहा है। वो बोले मदरसे के साथ साथ हमें कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, वो देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। उसके बाद में जो मुसलमानों का जो सशक्तिकरण किया है, जो घर, जो पानी, जो बिजली, जो रास्ते बने, उसके अंदर कोई जात और समाज को पूछ के काम नहीं किया। मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को वो दिया है जिसने मांगा। जो हाथ मांगे उसको काम, जो नल में से निकला जल, वो मुसलमान हो या हिंदू, सबको वो पानी मिला है। आज यहाँ पे 3 करोड़ गरीबों को घर दिए सर, उसमें 38% मुसलमानों के सर पे छत रखने का काम हमारे लाड़के पंतप्रधान ने किया। और मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ, एक बात मैं बीच में बात बिल्कुल नहीं किया सर। सैयद साहब उनको कंप्लीट करने दें। सैयद साहब उनको कंप्लीट, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। आई विल कम टू यू सैयद जी, आई विल कम टू यू। लेट हिम स्पीक। बोलिए। नंबर 2 सर, देखिए ये आरजेडी, समाजवादी और कांग्रेस, इनकी जो ढकोसलापना है उसको मुसलमान ने देख लिया है। 7% वोटिंग इस वक्त मुसलमान की महिलाओं ने बीजेपी को ऑल ओवर द कंट्री दिया है। ट्रिपल तलाक पे इनके मुंह में तो दही जब जम गई थी जब ट्रिपल तलाक का डिसीजन आया। इन्होंने एक बार भी सराहना नहीं की। आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के वक्त इनके मुंह में दही जम गई थी। इन्हीं का टर्म मैं यूज कर रहा हूं। इनकी चुपकी थी, इन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं किया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, उसके बारे में इनकी पार्टी ने कभी भी बात नहीं किया। और आज मैं यहाँ पे घोषणा करता हूं, लव जिहाद, कन्वर्जन के ऊपर वो आप कायदा बनने जा रहा है। आप कन्वर्ट तो करके दिखाइए। आपको कन्वर्ट करने का हक दिया किसने था? जो स्व खुशी से करता था उसको कन्वर्ट करते थे। ये लोग झूठे सपने, लोगों को 72 हुरे के सपने देते हैं। हिंदू लड़कियों को फंसा के लेके जाके उनसे शादी करो, उनका जीवन नष्ट करो। ये काम करने का काम ये सरकार ने इनसे करवाया। मुसलमान जमात जो है, हमारी जो इतनी प्यारी जमात है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके मौलवी, इनके टोपी डालने वाले दाढ़ी वालों ने इतना, महाराष्ट्र में तो छोड़िए, ऑल इंडिया के अंदर इतना नाम खराब करके रखा है मुसलमानों को। क्या लोग इनको नौकरी देने से आप पीछे हटते। अभी ये कंसेप्ट चेंज करने का काम ये सरकार ने किया। अब जैसे इनके हाथ से ये मुस्लिम समाज भी सटकते हुए देख रहा है ना सर, इनकी हवा टाइट हो रही है। अब महाराष्ट्र में आप देखिए सर, एक अल्टरनेटिव विकल्प मुसलमानों को मिल गया
दैट वाज MIM. MIM जो थे उसके जो सर्वा थे हमारे ओवैसी साहब, he led the hello, can you hear me? Campaign, we can hear you. We can hear you. There was. Yeah, he led the contingency that went on Operation Sindoor. This is how we are working with everybody together. और वहां पे राहुल जी जाके कहते हैं, तेजस्वी तो जा भी नहीं सकते, उनको इंग्लिश आती नहीं है, वहां जाके वो कहते हैं कि इंडिया इज अ फेल इकोनॉमी. अब कैसा अफसर एक वर्ल्ड फोरम के सामने, अखिलेश जी तो जा ही नहीं सकते, उनको इनवाइट भी नहीं किया था, और इतने ओपन डायस्पोरा के अंदर उनकी बात करने की क्षमता है नहीं है, ये पूजा मिश्रा मैम ही दिखाएंगे. मगर जो फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी जो 91 ट्रिप्स मेरे प्राइम मिनिस्टर ने किया, आज लोग हमारे देश में यहाँ पे एंजॉय कर रहे, क्रिकेट मैच को देख रहे, रास्ते पे घूम रहे, वीकेंड्स मना रहे, और बाकी 60% ऑफ द वर्ल्ड आज वो वॉर के साए में है. हमारा पेट्रोल स्टॉक्स, डीजल स्टॉक्स, LPG स्टॉक्स 3 महीने पूरेगा इतना स्टॉक ये देश में हमारे हरदीप पुरी जी ने और पंतप्रधान ने इतना सिक्योर किया है. इसके बारे में कभी भी सर फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर तो ये लोग ने तो बात ही नहीं करना चाहिए. हमको इनसे कोई सबक लेने की आवश्यकता नहीं है. जो हमने लोगों के सामने जाके उनके सामने जो हमारी देश की उपलब्धियां रखी है उसको देश में लोगों ने सराहा है. मगर इसके साथ ये बात यहाँ खत्म नहीं होती. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत 2047 के अंदर वी विल बी इन द टॉप 3. और ये होते हुए जब ये लोग देख रहे तो छोटे मोटे गटर की और गंदा रस्ते की ये छोटे मोटे ये लोग ये विषय लेकर आते. पूजा मिश्रा मैम सिर्फ वो लखनऊ और उसके आसपास गांव के बारे में बात करते हैं. हमारे मित्र तो आज फर्स्ट टाइम आए, इन्होंने तो इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर तो प्लीज इन्हें बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ बैठा है. और मैं यहाँ पे आपको कह के रहता हूँ कि 2027 में आने वाले इलेक्शंस के अंदर 15% मुस्लिम समुदाय ये भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को वोट देगा. इनने दिए हुए कॉलेजेस के अंदर बम बन रहे सर, इनने दिए हुए कॉलेजेस के अंदर बम बन रहे. इनके पूरे फंडिंग के जो पैसे है वो फंडिंग के पैसे यहाँ पर जो है ना, वो मैं नहीं कहना चाहता, मुझे किसी समुदाय को नाराज नहीं करना है, वो क्या काम कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए सर. और जितने भी अरेस्ट हो गए 2014 के पहले, जितने भी मुस्लिम भाई हमारे अरेस्ट हो गए वो 2014 के पहले हुए. 2014 के बाद एक भी निष्पाप, एक भी ईमानदार मुसलमान को जेल में डालने का काम ये सरकार ने नहीं किया. आखिरी बात मैं आपको बता सकता हूँ, एक मिनट बोलने देते हैं, पूजा मिश्रा आ जाएगा. दारोगा साहब, you talked a lot. अभी सैयद जी respond करेंगे. प्रदीप जी जो है अभी भाजपा के प्रवक्ता बोले जा रहे थे, मतलब कुछ भी बोले जा रहे थे, बोलने के लिए बोलना हो टाइप का ऐसा लग रहा था. इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को लाकर के कंप्यूटर दे दिया. APJ अब्दुल कलाम बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जो है अभी वो उत्तर प्रदेश के बस्ती से थे. ये कह रहे कि ये लिया जो सोफिया कुरैशी जिनके ऊपर इनके नेता ने गंदी टिप्पणी की थी, इनके जो है सरकार में आने के बाद में पढ़ना चालू किया था, ये मुसलमानों के अधिकारों की बात करते, हिंदू कोड बिल आया था तो उनके छातियों पे सांप लोते थे. ये बात कर रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विदेशी दौरे की अंग्रेजी बात करने की, जिन्होंने विदेश में से इंजीनियरिंग की हुई है, और दूसरे वहां प्रधानमंत्री 91 दौरे करने वाले जिनके जो है डिग्री का अता पता ही नहीं है. जब जो है स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ करता था तब वो ऑनर्स कर रहे थे, जो डिग्री आज तक नहीं पढ़ी, और इतना जो है गोपनीय है कि आप उस पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं. भाजपा के प्रवक्ता को किसी ने तो नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, पर माननीय जी भाजपा के प्रवक्ता बोलते बोलते बोल ले गए. और अभी इन्होंने कहा था कि इससे पहले कि जो है मदरसों को अनुदान दिया जाता, आपकी सरकार है बंद करवा दीजिए, ना देने मदरसों को अनुदान. इनसे बोलिए हज पे जो अनुदान दिया जाता है बंद करवा दे. देखिए जो भी सरकारें रहती है, मानसरोवर पे भी दिया जाता है, हमारी सरकार रहती, मानसरोवर पे भी जो जाता है उसको अनुदान दिया जाता है. जो कायदे बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा. इनको लगता है कि 2014 से बोला नहीं, 2014 से पहले जो है 2014 के बाद में बता दीजिए किसी मुस्लिम लोग को जो है किया हो जेल के अंदर में. आप होते कौन है जेल के अंदर में करने वाले? आप कोर्ट हैं, जज हैं, कचहरी है, आप है क्या? इसलिए तो कोर्ट आपको तलब करती रहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑटो सोमो लेते रहती है कि आप जजमेंट करेंगे. ज्यूरिडिक्शन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन,
तीन डिफरेंट चीजें हैं। आप जुरिडिक्शन तो कतई नहीं है, आपका कार्यभार है गवर्नेंस, और गवर्नेंस करते वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। और यही घमंड के साथ में आप जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो उसको गर्त में डालते चले जा रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 91वें दौरे का क्या मिला हमें? अभी जो सारे मीडिया हाउसेस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अमेरिका 30 दिन का दिया हुआ है, आपको रियायत दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर 30 दिन तक जो है रशिया से तेल खरीद सकते हैं। मतलब अमेरिका अब जो है बताएगा कि आप कहां से तेल खरीद सकते हैं, कहां से तेल नहीं खरीद सकते हैं। वो रियायत नहीं देगा तो भारत देश तेल नहीं खरीद सकता है। ये अभी गए थे दौरा करके, इजरायली दौरा, उन्होंने जो है इनको एक बना करके सम्मान दिया ताकि ये वापस आने के बाद में ईरान के मुद्दे पे कुछ ना बोल पाए। तो ऐसे कौन से आप विदेश नीति के साथ में चलते हैं कि आपको जो देश बुला रहा है, जो जिस देश जा रहे हैं, आपको उसका मोटो नहीं पता होता है, वो प्लान करके बुला रहे। तो इस तरीके की जो विदेश नीति अगर आपको लग रहा है बहुत बेहतर चल रहा है तो आपको ये मुबारक हो। विदेश में हम लोग का हमारा ये मानना होता है कि भारत देश की जो है विदेश में जाकर के छवि खराब नहीं होनी चाहिए, पर भारत देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है विदेशी दौरे से, आप बता दीजिए जो इतने विदेशी दौरे किए उससे क्या मिला हमें, आप बताइए। इससे पहले जो मान लीजिए कम विदेशी दौरे किए होंगे पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, पर कभी हमने भारत देश के नागरिकों को शैकल्स में बंधे हुए नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि कोई देश बार बार इंटरवीन कर रहा हो हमारे जो है मुद्दों पे, कोई देश कह रहा हो कि नहीं हम निगरानी रखेंगे और हम एक्सेप्ट कर रहे हो, और कोई ये सेलिब्रेट किया जा रहा हो कि अरे 30 दिन की मोहलत दी गई हुई है। तो ना तो आप जो है विदेश नीति में सक्सेसफुल हो रखे हैं, ना ही देश नीति में सक्सेसफुल हो रखे हैं। अभी आपने बार बार मुसलमान का, अभी आरएसएस की बात आप कर रहे थे तो मोहन भागवत जी से ससम्मान रिक्वेस्ट है पहले 4 बच्चे वो पैदा करें। जितने आरएसएस के लोग हैं जो वो कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करके अनाथ छोड़िए हम पालेंगे, उससे बेहतर है कि वो सारे आरएसएस के लोग खुद ही 4-4 बच्चे पैदा कर लें और पाल करके पॉपुलेशन बढ़ा लें। ये जो है दूसरे लोगों को ना प्रोवोक करें कि आप जो है बच्चे पैदा करिए उसके बाद में हम पालेंगे, नहीं, अनाथ बच्चे नहीं छोड़ेगा कोई। आप पैदा करिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, उसके बाद में आप बात करिएगा, स्वयं पे लागू कर लीजिए। उसके बाद में वो भाजपा के जितने जो है नेता हैं जो इस बात का जो है समर्थन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, सब लोग पहले 4-4 बच्चे पैदा कर लें। उसके बाद में जो महिला जिन्होंने कहा था वो भी भाजपा की नेता सब पैदा कर लें, उसके बाद में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, देश की तरक्की पे बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं, कभी रिलीजन को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, कभी जाति को लेकर के। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, इमोशन को जो है धर्म में जोड़ लेंगे, जाति से जोड़ लेंगे। आप सोचिए सारे उत्तर प्रदेश में जो है बंद कर रखा हुआ है इन्होंने, छात्र संघ बंद कर रखा, यूजीसी ला करके आपस में। पहले ये उत्तर प्रदेश का जो तरक्की है ना, इनको बोलिए पहले अपने सांसद और विधायक को समझा लें। इनके सांसद विधायक मंत्री खुद उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इनके विधायक हैं वो जो है उनके मंत्रियों को उठाकर, ब्रिजभूषण प्रताप सिंह है, इनके मंत्री को उठा करके जो है भर लेते हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए, कि भर लेते हैं कि भाई आपने सड़कें नहीं बनाई हुई है। प्रतिभा शुक्ला 30 घंटे तक जो है थाने पे प्रदर्शन कर रही होती है, इनके विधायक जो है गुज्जर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि उनके थाने पे नहीं सुनी जा रही। इनके खुद के जो है विधायक सदन में खड़े होकर के इनसे बिजली को लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं ये देखिए चूड़ो खूबसूरत तस्वीर, वो तस्वीर पहले अपने विधायकों को तो दिखा लीजिए। आपके मंत्री जो है पटेल जी बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नहीं करप्शन हमने नहीं किया हुआ है, करप्शन तो जो है सचिव किए हैं, शिशिर सिंह किए हैं, शिशिर सिंह को हटाया जाए, हमने नहीं किया हुआ, आशीष पटेल ने नहीं किया है करप्शन। तो ये चीजें पहले अपने जो आपके पार्टी के लोग हैं उनको सिखा लीजिए, क्योंकि उनको भी जनता के बीच में जाना, वो भी डरे हुए कि जनता के बीच में क्या मुंह लेकर के जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की कैलिबर पे जो है प्रश्न उठाने की आपकी ना तो हैसियत है, ना ही प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कहीं टिकते भी नहीं है उनके सामने। अगर विदेश नीति क्या है, अभी जो चल रहा है ना नीतीश कुमार को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज से 15-20 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि यही अंत होने जा रहा है नीतीश कुमार जी का। तो आप उनके सामने नहीं टिकने वाले हैं, ये आपकी जलन है कि आप कह रहे हैं कि कोई दौरा ही नहीं किया था, एमओयू जो साइन कर रखा हुआ तो उसके फीते काट रहे हैं आप। पूछिए अपने मुख्यमंत्री से, वो बताएंगे कि कौन सा एमओयू कहां से साइन करके समाजवादी पार्टी ने दिया था जिसके फीते काट रहे और पूरी तरीके से प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप। Can I go to Syed Akram Saab? You wanted to reply to Akram Saab? You want to reply to Ali Daruwala Saab? बोलिए। पूजा को की बातों में एक ऐड कर रहा था कि वो सब्सिडी नहीं है, सब्सिडाइज नहीं। ओके। यही बात जहाँ मदरसों की बात कर रहे हैं, मैं ये आपको बता दूं कि इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। हंगर इंडेक्स में वर्ल्ड में हम
अभी युगांडा को कंपटीशन दे रहे हैं। ये जो इनका ताम झाम प्रचार तंत्र बोल रहा है, ये जो जाते हैं एप्स्टीन फाइल में क्या क्या किए जेफरी एप्स्टीन के साथ में, वो आप भी जान रहे हैं और पूरी दुनिया जान रही है। और चाल चरित्र और चेहरा अपने आधार पे जो कैबिनेट बांट रहे थे वो भी पूरी दुनिया देखी है। तो ये लोग जब हाई मोरल लेते हैं ना तो बड़ा तकलीफ होता है, लगता है कि अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आता हूं अपने दूसरे मुद्दे पर। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने अपमान किया है तो हिंदू महिलाओं का किया। जो ये अभी एक राग लव जिहाद कर निकाले थे ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। एक औरत की उसके पूरे ऑटोनोमस को क्वेश्चन करते हुए ये मानते हैं कि एक लड़का काला चश्मा लगा के मोटरसाइकिल से यूं कट मार के निकलेगा और उससे हिंदू लड़कियां उसके पीछे बैठ करके जो है उसके ट्रैप में आ जाएंगी। आप सोचिए कितनी बड़ी एक पूरी महिला की पूरी उनकी शख्सियत के ऊपर में आप लांछन डालते हो, क्योंकि इनका जो बेस है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, जहां से ये जिस स्कूल ऑफ थॉट को ये बिलोंग करते हैं, वहां महिलाओं के ऊपर में सबसे पहले कहा गया है कि इनको अकेला मत छोड़ो, ये अधीन रहेंगी, बच्चा रहेंगी तो बाप के अधीन, जवान हुई तो पति के अधीन और बूढ़ी हुई तो बच्चों के अधीन, नहीं तो ये चरित्रहीन हो जाएंगी। ये इनका टेक्स्ट कहता है, इनका कोर वैल्यू सिस्टम कहता है। मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, आप मदरसे को बंद करने की और खोलने की बात क्या कर रहे हैं? सारे हायर स्टडी में सबसे ज्यादा आपने फंड कट किया। एमएचआरडी का रिपोर्ट है 40% स्कूल्स आपने बंद किए हैं। प्रदेशों में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के जितने भी एमएसपी के वायदे थे आपने खत्म कर दिए, नहीं पूरे किए। लैंड एक्विजिशन बिल को वापस आपको लेना पड़ा। इसी महाराष्ट्र में राजू शेट्टी के नेतृत्व में ये भूमि अधिकार आंदोलन चालू हुआ था 2016 और 17 में, आपको ध्यान में होगा, और दिल्ली मार्च किए थे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अगेंस्ट में। और वो पूरी वामपंथी संगठन, खेत मजदूर और यूनियन और किसान यूनियन एक साथ आ रही थी। इनको लैंड एक्विजिशन बिल वापस लेना पड़ा। ये अडानी और अंबानी के लिए बिल लेकर आते हैं। कौन सा इन्होंने क्या कर दिया? ये विदेश जाते हैं किस लिए? प्रचार और आराइश, अपने घूमने और टहलने के सिवा इनके पास क्या है? और कहां नाम आ रहा है इनका? कौन से महान कामों में नाम आ रहा है? अपने दोस्त को खो रहे हैं ये लगातार। पड़ोसियों से तो आपने 36 का आंकड़ा पाल रखा है। आपसे तो बेहतर था श्रीलंका। कल जब ईरान के मरीन को बम्बार्ड कर दिया जो इंडिया से जा रहा था, श्रीलंका ने उसको उपशेल्टर दिया है, बचाने की कोशिश की है, लोगों को अस्पताल भेजा है। और श्रीलंका नेवी कोस्ट गार्ड ने यह भी कहा कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा। आप सोचिए कि आपकी हैसियत क्या बची हुई है। तलवे चाटने वाले लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। बेहयाई की इंतहा ये तो, और देश कहां जाएगा? आप बच्चे में टेबल टॉक पे हिंदू मुस्लिम लेकर बैठे। आप बोलते हो कि फलाना ये महान था, फलाना वो महान था। तो सैयद साहब, क्या आप चेंज नहीं दिख रहे? आरएसएस मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में सलमान खान जाता है, अदनान सानी जाता है, मुस्लिम विभाग के प्रमुख जो नॉट सिंबल ऑफ मुस्लिम। सलमान खान इज नॉट, शाहरुख खान इज नॉट अ सिंबल ऑफ मुस्लिम डिस्कोर्स। इसको आप बंद कर दीजिए। ये कहीं भी जा सकते हैं। और इनका स्टेटमेंट है, सलमान खान सेफई आए थे कार्यक्रम में, तो जब एक चैनल के शो में पूछा गया कि आप तो अखिलेश यादव के कार्यक्रम में नाचने गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा पेशा है, दिस इज व्हाट माय प्रोफेशन इज। और वो प्रोफेशनली जाते हैं। वो तो पतंग भी उड़ाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, ठुमके भी लगा लेंगे। ठुमका तो ये लगाने गए थे इजराइल गए थे ठुमका लगाने। इनका प्रोफेशन तो ठुमका नहीं था। ठुमका तो सलमान खान का प्रोफेशन है, वो तो लगाएंगे। आप ये इस बात का जवाब दीजिए, इस माँ की, इस देश की लाखों करोड़ों माओ ने जिन्होंने बच्चे जने हैं, आप वृद्धा पेंशन में फंड कट कर दिए, वो पैसा आपने खा लिया। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अमीर और गरीब की जो खाई बन रही है इस देश के अंदर में, वो सैयद साहब लोग काम कर रहे हैं। आपको रिप्लाई देते हैं सैयद साहब। अली दारूवाला वांट्स टू गिव यू रिप्लाई। अली दारूवाला जी, रिप्लाई कीजिए प्लीज।
बोलिए बोलिए दादा। देखिए, अभी इन्होंने जो बात करी सर, ये इसको लेकर मैं आपसे कंप्लीट करता हूँ। हाँ। इन्होंने जो मदरसा के अंदर जो बताया, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है सर मदरसा का, हम लोग खुद यहाँ पे चलाते हैं। मदरसा से जो उनको एजुकेशन दिया जाता, उसको रिकग्निशन नहीं है। वहां पे सिर्फ निकले तो लोग 3 चीज बन सकते, एक तो वो मस्जिद का इमाम बन सकता, या वो ऑटो ड्राइवर बन सकता, या वो मैकेनिक बन सकता। मुझे बताइए वहां पर ऐसा कौन सा राष्ट्रपति रहे एजुकेशन एपीजे ये अब्दुल देते? कलाम, वन कम से सेकंड, कम लेट मी उनका तो फिनिश। सम्मान करिए, मदरसे मुझे गए, ये उनका इतिहास बताइए, मुझे ये पढ़िएगा। बताइए, मुझे बागी ये किस रहे बताइए, हैं? मदरसा बस्ती से में जन्म सर्विसेज लिया कितने हुआ बने? है, मदरसे आईपीएस पढ़े ऑफिसर्स हैं, कितने बने? सर मदरसे दूसरी बात पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट, कम से कम दूसरी जो है इंपॉर्टेंट नफरत बात, इतना मत सर पालिए कि हकीकत सुनिए अपने मेरी बात। महापुरुषों पूजा का मैम अपमान हकीकत होने लग सुनिए, जाए। शो छोड़ आपके के किसी के भागना नहीं। धर्म के अगेंस्ट में अब सुन नफरत के है, जाना आपको पड़ेगा मुबारक आपको। है उस नफरत को, मेरी पूरी बात रखे मैं रहिए यहाँ आप, पे रटा लेकिन रहा उसको हूँ, मैं इतना आपको मत नहीं रिपीट करिए कर कि रहा जो हूँ, है मैं मेरे आप प्रवक्ता स्टेटमेंट बन को करके बैठे हुए रिट्रीव नहीं कर एपीजे रहा। अब्दुल मैंने कलाम जो जी, कहा वो कहा, आप सुनने मिसाइल की मैन ऑफ क्षमता इंडिया, रखिए। और क्या वो पूजा नहीं मैम गए थे सुनने की मदरसे? आप क्षमता प्रूफ दे रखिए। दीजिए मदरसे नहीं गए डोंट थे तो। जस्ट डोंट अटर आप नॉनसेंस, मदरसे लिसन नहीं टू गए तो व्हाट इट आप इज। ये बात कैसे बोल Don't रहे हो? फिर utter वो to मदरसे आप nonsense. बंद करिए ना, Just आप listen to मुहिम what I'm saying चलाइए, over here. आप मुहिम Don't चलाइए। utter. This भाजपा is not a सरकार में है stupid debate. और शिक्षा Logical debate करिए, राज्य का विषय होता है, शिक्षा राज्य का लॉजिकल विषय debate होता है। करिए, भाजपा और सरकार का जवाब आपने लेने की पट्टा हिम्मत पहन रखा रखिए हुआ मेरे है, तो से आप। भाजपा सरकार से बोलिए कि मुहिम हिम्मत चलाएं। रखिए, जितने जो है हिम्मत कॉन्वेंट रखिए, स्कूल है जहाँ पे जो हिम्मत चर्चा रखिए। चलाते हैं, सवाल का जितने जवाब मैं इनका दे मदरसे रहा हैं, हूँ, आप उनको चलाइए ना प्लीज मुहिम अपनी बंद कैसेट करवाने बंद की, करिए। चलाइए आप मुहिम। सवाल आप का कह जवाब रहे हैं लीजिए कि पूजा शिक्षा मिश्रा मैम। आपका जो है आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, शिक्षा हो आपकी गया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रटना है, हो और गया, आप कह रहे हैं आपका कि रटना मदरसे में खत्म हो आप गया, ऐसा शिक्षा दिलवा रहे हैं। ये पूजा जी, आपका रटना खत्म रेस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, गया। अपना मैं भी फेलियर जवाब नहीं, दे है आप। सकता हूँ। एक बार सुन अगर तो लो। मदरसों में आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो ये तो राज्य सरकारों का फेलियर है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है। शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मदरसा हो, चाहे वो असम का मदरसा हो, चाहे कहीं का भी मदरसा हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे वो जो है आरएसएस के स्कूल हो। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो इसकी जवाब दे जिम्मेदार दो। साफ साफ राज्य सरकार है, जवाब ले लो और आप, जहां आप जहां जवाब फेलियर ले दिख लो। रहा है मदरसे का, आप उसकी सच जिम्मेदार सुनने की सब क्षमता सरकारें रखते हो। हैं, सरकार। और ये जो है भाजपा सरकार जिम्मेदारी ले ले। हाँ, तो ये रिप्लाई पहली बात। पूजा जी, रिप्लाई की बात जानिएगा, मदरसों जवाब ने दे दो। उत्तर प्रदेश में 2020 से एप्लीकेशन लगाए कि रजिस्ट्रेशन जो है, जो टाइम टू टाइम बार बार रिन्यूएशन होता है, वो रिन्यूएशन प्रोसेस नहीं चल रहा है, उसको करिए, उसको करिए। बैठे रहो चुपचाप मूक दर्शक बन करके, एप्लीकेशन पढ़ती रही। उसके बाद में 3 साल बाद में कहते नहीं अब फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रखे हुए। इनका भाई झूठ आपने अभी क्यों एक्सपोज नहीं करता करवाए? हूं मैं। आपके पूजा पास में मिश्रा मैम, एप्लीकेशन जा और रही ये थी, जो आपकी उन्हीं के जिम्मेदारी मुसलमान नेता बनती बन है, के आपने बैठे अपनी ना, जिम्मेदारी हकीकत नहीं सुन निभाई। लिए। उसके बाद में पूजा अगर वो मिश्रा मैम, बात रजिस्ट्रेशन तो चालू सुनिए कर दिया, मेरी। अगर पूजा जी, आप बोले ना, थोड़ा सुन लो। हो रहा है, पूजा जी, थोड़ा सुन लो। जिम्मेदार है। पूजा जी, जरा सुन लो। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बस करो सरकार अपनी झूठ, जिम्मेदार है मेरा उत्तर जवाब तो प्रदेश ले में लो। शिक्षा पूजा जी। मंदिर में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे अरे वो ये स्कूल हो मदरसा जिनके का अपोजिट में झूठा आपने शराब आपका की जो दुकानें आंसू खोल बहने रखी वाली है, का काम वो सब बंद में करिए। गलत ये सिद्ध करने मगरमच्छ की के आंसू जिम्मेदारी बंद आपकी करिए, है। जवाब ले और लो। आप पूजा जी, जरा सुनिए ना। कर करके बोल रहे कि नहीं हाँ गलत चल रहा है। भाई हाँ, कैसे चल रहा है? जवाब ले लो, मेरी आप बात सरकार तो में जवाब सुनिए। तो सुन लो। आपकी जिम्मेदारी है, आपको मेरी बात तो जिम्मेदार सुनिए, बना के बिठाया और हुआ मेरी है। जिम्मेदारी क्या है वो भी सुन लीजिए। बोले जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दानो वाला साहब जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ, जितने भी मदरसे हैं जो चल रहे अनऑथोराइज, इनको सरकार का अनुदान जो यूपी गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर बिहार में नहीं थी, जब इनके गवर्नमेंट ने आप ये बस यूपी जवाब को दे दीजिए जो कि देने का काम किया 2020 था से उसको जो बंद करना ऑथराइजेशन चाहिए। मैं प्रोसेस आपके होता है माध्यम से कि ये सरकार रजिस्ट्रेशन को को विनती करता जो हूँ, है रिन्यू किया क्योंकि जाता है, वो देखिए प्रोसेस ये अभी आपने सुनेंगे बंद नहीं करके मेरे क्यों बात को, रखा था? ये जनमानस तक हकीकत को जाने नहीं देंगे, ये जनमानस की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, 3 साल बाद ये कर रहे कि नहीं रजिस्ट्रेशन हकीकत चेक सुनना किया नहीं जाएगा, चाहते। क्यों आपने रोक रखा था? मदरसे तो तैयार बैठे पूजा हुए थे कि मिश्रा आप मैम ध्यान रजिस्ट्रेशन को से रिन्यू सुनिए, करिए। पूजा जी, ध्यान जरा से सुनिए सुनिए। ना, सुन लो पूजा ना। मिश्रा मैम मेरे जवाब को ले लो, जवाब जवाब तो सुनिए ले लो। बोलिए बोलिए। पूजा अगर मिश्रा आप मैम, एक्चुअल बात करें तो सैलवेशन जवाब जो को ले होता लिया है, जाए। आपने मेडिकल कॉलेज का सैलवेशन रजिस्ट्रेशन जो होता है, एक्सपायर होने दिया, नहीं उसके आप बाद में नॉनसेंस छात्रों बात को कर बोल रहे हो, दिया आप कि सत्ता भैया में से आप जाने जाओ वाले हो, मेडिकल कॉलेज आप का जो सत्ता है में से वोट रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सपायर जाने हो वाले गया, हो, दिस इज आपके हाउ पास योर तो सत्ता गवर्नमेंट नहीं इज है, वर्किंग। अभी आपकी मदरसे पार्टी का भी बंद होने रजिस्ट्रेशन वाली है। एक्सपायर हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, देन यू विल बी क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज एंड द मदरसा कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको आप नहीं निभा रहे होते हो। और वहां के स्टूडेंट को, आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो एमबीबीएस के छात्र वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया हमारे कॉलेज का, हमारी यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यू करो। और यही अपने छात्रों में जो एलएलबी के छात्र पूजा जी, जरा 2 मिनट उनको सुन लीजिए। पूजा जी, जरा सुन लीजिए, 2 मिनट उनका सुन लीजिए। एलएलबी का जो रिनोवेशन है वो रखा हुआ
जो झूठ है ना, पूजा मिश्रा मैम का झूठ है, 3 साल से ये जो झूठ रटते रहते हैं ना चैनल के ऊपर,
आप मुझे इसका जवाब देने दो प्रदीप सर। पूजा जी, जरा सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। इनको म्यूट पूजा कर जी, दीजिए सर, let him इनको speak for म्यूट 2 कर minutes. दीजिए। 2 इनकी minutes, बकवास 2 को मिनट म्यूट बोलिए, कर बोलिए दीजिए। दारोवाला साहब 2 मिनट में बोलिए, बोलिए अगर आपको एजुकेशन बकवास लगता है तो भैया आपको मुबारक, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, छात्र संघ से निकल के आते हैं, 100% एजुकेटेड लोगों के वोट से बन करके जीतते हैं शासन अध्यक्ष, तो एक भी अनपढ़ वोट नहीं करता वहां पे। 100% मिनिमम क्वालिफिकेशन, इनकी फ्रस्ट्रेशन मैं जानता हूँ, निकल करके मैं आए, तो आपकी हमारे फ्रस्ट्रेशन की education आदर का करता हूँ क्या Listen होता है? to पूजा मिश्रा जो है मैम। 2 registration मिनट। cancel होने के बाद में पॉलिटिसाइज नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते उस पे। पूजा जी 2 मिनट सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना, उनको बोलने दो, 2 मिनट बोल दिए दारोवाला साहब, बोलिए बोलिए। करेक्ट। ये देश के अंदर जो इन्होंने फेक नैरेटिव चलाया था और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अंतर्गत लाखों मदरसे खोले थे, मालूम है वो हमें जन्नत मदरसे की के हकीकत जो पर गाली में खुश छात्र रहने के पास आउट लिए हो गए, ख्याल अच्छा वो है, आज खुश किधर रहिए आपको आप। मिलेंगे, वो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूजा मिश्रा मैम ने इनकी जो महिलाओं के बारे में, ये जो लव जिहाद के अंतर्गत ये जो कन्वर्जन हो रहा है, मुझे अगर आनंद होता अगर पूजा मिश्रा मैम उसके फिगर्स बताते। अगर मुझे भी Point number आनंद 3. होता अगर आप रघुराज Point प्रताप number सिंह को 3. कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कहा जाओ लड़को जो है 4-4 मुस्लिम लड़कियां लेकर के आओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं जुबान ये खींच लूंगा, ये मुझे हमने भी नहीं अच्छा कहा, लगता ये हमने नहीं कि कहा उत्तर सर, प्रदेश में ये एक नैरेटिव पूर्व तुम्हारा मंत्री है, भाजपा सरकार में रहा हुआ, भाजपा सरकार ये का नैरेटिव भाजपा तुम्हारा का है, व्यक्ति, वो ये ये कह रहा है नैरेटिव कि तुम्हारा जाओ है, लेकर के आओ ये 4-4 नैरेटिव मुस्लिम आप लोग लड़कियां चलाते लेकर के आओ, हो, नौकरियां ये दूंगा तुम मैं तुम्हें, सांसद चलाते हो, मैं नौकरियां और दूंगा। तुम्हारे पार्टी से और जो निकले है हुए आप लोगों लोग की हिम्मत नहीं बाबरी पड़ी कि उसके मस्जिद ऊपर की में कोई नींव वेस्ट कार्रवाई करते, बंगाल में मुझे रखते भी हो, बड़ा अच्छा लगता। जिसके आप अगर इंडिया सारी अलायंस के महिलाओं का मेंबर हो, सम्मान करते तो मुझे भी बड़ा जो अच्छा लगता। जब इंडिया हिंदू अलायंस कोर्ट के बिल जो पे मैंने मेंबर सुना हो होता पूजा नहीं, मिश्रा भाजपा वाले मैम, लोग छाती पीट पूजा पीट करके मिश्रा नहीं मैम हुए मेरी थे, बात को ये ध्यान महिला से सम्मान की सुनिए, बात करेंगे। आपने हिंदू कभी कोर्ट भी बिल आया निषेध था नहीं तो किया, सबसे ज्यादा छाती पीट आपने कर तो होने कभी वाले भी आपकी निषेध नहीं पार्टी किया। थी। आपकी चार पार्टी थी, आपकी सेवकों पार्टी का ने इतना खून का कहा लोगों जो कि हिंदू सवाल का महिलाओं को कैसे जवाब है, अधिकार मिल जाएगा, उसका उनको कैसे जो प्रायश्चित है आपके बराबरी पार्टी का को अधिकार करना मिलेगा। पड़ेगा। आपने उसका इतना विरोध किया कि आप वॉकआउट कर गए, उसको फ्रैक्शन कर करके लो बनाना पड़ा। हिंदू कोर्ट बिल पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, ये आपकी देन है, ये भाजपा की देन है। अगर भाजपा उस समय पे ना लौटी होती, ना भागी होती ना, तो हिंदू कोड बिल पूरी तरीके से पूर्णतः लागू हो जाता। उसको फ्रैक्शन कर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और नेहरू जी को जो है कर करके लागू ना करना पड़ता। आप लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार देने की ना तो इच्छा आपकी कभी थी, ना है और ना ही दिखती है। ना किसी को एजुकेशन देने की इच्छा आपकी थी, है और ना ही दिखती है। ना ही आप नौकरियां देना चाहते हैं, वरना अब तक आप जॉब क्रिएट कर रहे होते, जॉब खा नहीं रहे होते। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को आपने कह दिया आपने कि 5 साल के भीतर में जो है आप टेट क्वालिफाई करके दिखाइए, अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी जो नौकरी है वो हम खा जाएंगे। वैसे ही आपको बचे हुए लोग टहल रहे हैं उनको नौकरियां नहीं देंगे, पर आपकी जो चल रही है उसको भी हम खा जाएंगे। इस तरीके की जो है कार्य भाजपा की हो रखी हुई है। और आप बात करेंगे नहीं, हम पोलराइजेशन मदरसे को ठीक करना है, गलत चल रहा है। थैंक यू पूजा मिश्रा जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू सैयद अकरम साहब, thank you for being on the show. I think Daruwala Sahab had to leave. Daruwala Sahab अचानक चले गए. Thank you Sayyid Sahab. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. We talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief in the right to life, liberty and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, when you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. When you subscribe to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. As we always believe, it's a fundamental duty of all political parties and political leaders to see that they come together. They come together to preserve and protect the foundations of the Constitution. Because if the Constitution survives, the Republic survives. The Constitution survives, the Republic survives, and if the Republic survives, the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra, Mumbai. Till then, it's bye for now.